Hello students, today in this first episode we are going to discuss the poem number 2. The title of the poem is The Laburnum Top. Writer or the poet of this poem is Ted Hughes. So better to discuss the first central idea of the poem. The poem, The Laburnum Top, is a beautiful poem in which the poet has used the laburnum tree and goldfinches as a symbol of life and its fructuations. So these are the main things, two symbols here our poet has used. Two symbols. So the first one is the laburnum top. It means the epic of that tree or the plant. Laburnum is the name of the tree. Another is the goldfinches. Goldfinches are coming, sitting there, nesting there, chirping there on that top of the tree. So the life and the fluctuations, these are the two dimensions our poet has focused. In this poem, the poet describes how the visit of a goldfinch changes the laburnum tree. The goldfinch transforms the tree and makes it come alive as the chips of the goldfinch start to rustle and chirp on seeing her. Once the goldfinch leaves the tree, it becomes quiet and still again. The laburnum tree symbolizes the pattern of your life in general, which is usually dull and inanimate. The goldfinch breaks the usual pattern and makes it lively. Without the goldfinch, the laburnum tree is just like another tree. In other words, it is the attitude of a person towards life that makes life meaningful and worth living. तो यहाँ पर जो हमारा पोएट है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि लेबरनम जो ट्री है वो तो वहीं पर है अपने स्थान पर, मगर जब वहां पर उड़कर गोल्डफिंच छोटा सा बर्ड जो आता है वो वहां पर बैठता है, वो चिरपिंग करता है, तब वो ट्री है वो लाइव हो जाता है। तब उनको लगता है कि मेरा जीवन कोई जीवंत है। सिमिलरली हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। घर के अंदर जब बच्चे नहीं होते तो घर पूरा सुनसान बन जाता है, मगर छोटे छोटे बच्चे जब आप सभी घर पर जाते हो, थोड़ी तूफान करते हो, थोड़ी मस्ती करते हो, तो घर में एक लाइवलीनेस आ जाती है। वैसे स्कूल के अंदर भी ऐसा ही रहता है। जब छुट्टियों के दिन के अंदर स्कूल पूरी खाली रहती है, मगर आप जब सभी आ जाते हो स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर, तब स्कूल पूरी लाइव बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे पोइट ने यही समझाने का प्रयास किया है कि ट्री माने हमारा जीवन है वो मोनोटोनस है, मगर इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी बातें जो हम ऐड कर लेते तो जीवन है वो लाइव बन जाता है और जीने का मकसद भी हम पा लेते हैं। So this is the central idea of the poem. Now better to understand the poem with this stanza. So first stanza of the poem is: the laburnum top is silent, quiet, still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds
फैलन। तो ये रूटीन है सितंबर के अंदर। वो लेबरनम का जो ट्री है, इनका टॉप है, वो कैसा है? पूरा साइलेंट है, क्वाइट है, स्टील है, वो वहीं पर ही है, कोई मूवमेंट नहीं है वहां पर, कोई लाइवलीनेस नहीं है। और आफ्टरनून के अंदर जब सनलाइट आता है तो वो लीव्स होते हैं वो थोड़े येलोई माने पीले रंग के पड़ जाते हैं, माने जो ग्रीननेस इनकी है वो धीरे 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 फेडअप की ओर चली जाती है। और उनके सभी सीड्स इनके ऊपर लगे, जो छोटे छोटे फ्लावर सीड्स वगैरह वो भी गिरने लगते हैं, माने पूरा जीवन उनका वैसे गमगीनी, उदासी, मोनोटोनस की ओर चला जा रहा है, डेथ की ओर जा रहा है, लाइफ का एंड जैसे आ रहा है उसे उन दिन के साथ उनका वो जो लाइवलीनेस है वो नहीं रहती वहां पर। सो यहां पर जो वर्ड आपको सुनने को मिले वो है लेबरनम टॉप, माने टॉप पार्ट ऑफ द लेबरनम ट्री। द पोएट here describes a beautiful sunny autumn. The laburnum tree is silent and still. It is laden with yellow leaves and yellow flowers in September. Its leaves have turned yellow because of the autumn season, and all its seeds have fallen. So this is the first stanza. Now, let us move to the stanza number 2. Till the goldfinch comes with a twinging chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness in a machine startup of chitterings, in a tremor of wings and thrillings, the whole tree trembles and thrills. तो छोटे छोटे ये जो गोल्डफिंच के बर्ड्स वहां पर आ जाते हैं, उनके जो विंग्स है वो वहां पर वो ऐसे ही फ्लाई करते हैं उसके साथ, और वो पूरा जीवन वापिस आ जाता है। हमारे जो ये ट्री है, माने हमारे जीवन में भी ऐसे छोटे छोटे खुशियां हम जो मिलती है, उस खुशियों से हमारा जीवन फिर से जीवंत बन जाता है। थोड़ी देर के लिए हमारी सैडनेस है, हमारी गमगीनी है, ग्लूमी है, वो धीरे धीरे दूर चली जाती है। It is the engine of her family. She strokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bad face, identity mask. तो ये पूरा इंजन बन जाता है। ये जो रहता है गोल्डफिंच आता है तो पूरा ये इंजन बन जाता है, ऐसा यहाँ पर वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो जो छोटे छोटे वर्ड्स है जो आपको समझने की आवश्यकता रहेगी, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू शुड लर्न। गोल्डफिंच माने स्मॉल येलो बर्ड, ट्विचिंग माने स्मॉल ऑफन इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, chirrup the sound made by the bird, startlement माने amazement, slick माने smooth, abrupt माने suddenly, chittering sound made by baby birds, tremor shaking, thrilling to sing a series of quickly repeating high tones, trembles and thrills माने sex violently. The engine of her family, the goldfinch, strokes, adds fuel. Here the goldfinch is feeding her chicks, flirts, moves abruptly or jerkily with
light steps. Bed means straight. So just then a goldfinch alights on the laburnum tree, making source high pitch sound. The goldfinch has her nest in the tree and her chicks are resting in the nest. On the mother's return, a sudden movement stirred the tree. Her little ones are excited on her arrival and start chirping. तो ये जो गोल्डफिंच है वो अपने जो छोटे छोटे बच्चे वहां पर रखे हैं ये ट्री के ऊपर उनका नेस्ट बनाया है। तो जब वो वापस आते हैं तो सभी बच्चे, जैसे आप घर पर माँ कहीं बाहर गई है, मदर कहीं बाहर गए, पिताजी कहीं बाहर गए, वो घर पर आ जाते हैं तो आप तुरंत ही उनको हग करते हो, उनको रिसीव करने चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर बर्ड्स में, एनिमल में भी वही सेंस रहती है, उनका भी अटैचमेंट इसी प्रकार का रहता है। तो राइटर ने यही बताने का यहाँ प्रयास किया है। द cautious mother enters the tree with great care so that no predator can come to know that her babies are housed in the nest. तो हमारी माँ जैसे हमारे लिए बहुत ही केयर रखती है, हमारा रक्षण करती है, उसी तरह ये जो छोटे छोटे गोल्डफिंच है, वो जो बर्ड्स के बच्चे हैं, उनको भी ये गोल्डफिंच अच्छी तरह से केयर लेती है, किसी को पता ना चले वो बाहर गए तब कोई इनके ऊपर अटैक ना कर दे। The poet has compared the alert, abrupt and slick movement of the goldfinch with that of a lizard. The goldfinch has been called the engine of her family. Just as the engine starts up the machine, her arrival in the nest has suddenly started up the silent machine. तो इसी तरह पोएट यहां बताने का प्रयास कर रहा है कि ये जो गोल्डफिंच है वो अपने घर का इंजन है। वो जब घर में आ जाते हैं तो सभी बर्ड्स है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सभी स्टार्ट होने लगते हैं, चिरपिंग करने लगते हैं, फ्लाई करने का प्रयास करने लगते हैं। तो वो अपनी माँ है, ये बच्चे के लिए इंजन है। हमारे घर में भी ऐसे ही है, दादा दादी आ जाते हैं बाहर से, अंकल आंटी बाहर गए वो आ जाती है, तो वो घर पूरा लाइव बन जाता है। ऐसे फैमिली मेंबर्स के अटैचमेंट, एक बॉन्डेज रहता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही एहसास हो रहा है। After feeding her chicks, the goldfinch flies up and rests on the end of a branch of the tree. Her identity concealed behind the yellow flowers and yellowing leaves. तो जैसे ही वो अपने बच्चे को फीडिंग करा देती है, इसके बाद वो ब्रांच के ऊपर दूर जाकर बैठ जाती है और वो जो इनके येलो फ्लावर्स है उनके अंदर हाइड कर लेती है, तो किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ पर इस तरह का बर्ड्स यहाँ पर कोई बैठा है। थर्ड स्टांजा। देन with airy, delicate whistle chirrup, whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subside to empty. तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है एरी, माने स्ट्रेंज इन अ फ्राइटनिंग और मिस्टीरियस वे। लॉन्चेस मीन्स फ्लाइज, infinite the sky, subsidize to become silent or just as earlier empty। तो इनको भी समझ लेते हैं। तो राइटर बताते हैं यहाँ पर, after some time the goldfinch makes a strange soft high pitched sound, then she flies away towards the infinite sky. The laburnum tree becomes silent again after the departure of the goldfinch, and everything seems to be the same it was before the arrival of the goldfinch. और जैसे ही गोल्डफिंच वहां से उठ जाता है, तुरंत ही वहां पर साइलेंट बन जाता है।
जिससे ये गोल्डफिंच के आने के पहले जब पूरा ये हमारा लेबरनम ट्री था वो साइलेंट था, उसी तरह ये भी फिर से वापिस वो साइलेंट हो जाता है। माने गोल्डफिंच के आने से पूरा जो ट्री है वो एकदम लाइव बन जाता है। जैसे कोई ऐसे पॉजिटिव लोग हमारे बीच में आ जाते हैं, फैमिली में आ जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं, तो पूरा जो माहौल है वो लाइव बन जाता है। तो गोल्डफिंच का आने से ये पूरा ट्री है वो लाइव बन जाता है। तो ये जो 3 स्टांजा थे, अभी इनको आप टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ लेना, इनको समझने का प्रयास करना। इनके डिफिकल्ट वर्ड्स है, इनको भी नोटबुक के अंदर आपको लिखना है। इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम इसकी पोएटिक जो डिवाइसेस है इनके बारे में चर्चा करेंगे, और इनके बाद इनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स की भी नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। अच्छा, तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर, थैंक यू।